Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 8, that is the cell, the unit of life. Today we will study about some important cell organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, ribosomes and vacuoles. So let's start. Okay students, we are doing cell, the unit of life. In the previous video, we discussed about the structure and function of cell wall, the plasma membrane and the cytoplasm. There are living subcellular structure of the cytoplasm and they are known as protoplasmic bodies or cell organelles. There are many type of membrane bound cell organelles which collectively form endomembrane system because their functions are coordinated. So let's start endomembrane system. Okay students, the cell organelle is in the eukaryotic cell. There is an endomembrane system. It is the group of membranous organelles which have coordinated function. For example, endoplasmic reticulum, which is known as ER, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. The system includes ER, Golgis, lysosomes, vacuole because their function of the mitochondria and chloroplast, they are not coordinated with these components. So they are not included in the endomembrane system. Endomembrane system के अंदर students हम mitochondria और chloroplast को include नहीं करते because उन दोनों के जो functions हैं they are not coordinated with these components. Otherwise जो ER है, Golgi हैं, lysosomes हैं, peroxisomes हैं, vacuoles हैं, इन सब के functions जो हैं they are coordinated and collectively they form endomembrane system. Okay. So first of all, we will discuss about endoplasmic reticulum, which is also known as ER. That is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, students, it was discovered by Garnier 1897 and he named it ergastoplasm. But its ultrastructure was given by Porter, Claude and Fulham in 1945. So term endoplasmic reticulum जो है that was given by Porter 1953. He coined the term endoplasmic reticulum. So students, endoplasmic reticulum क्या चीज़ है? Endoplasmic reticulum सेल के अंदर एक नेटवर्क है. Throughout the cytoplasm जो है different एक channels हैं, interconnection है और let's study in detail the structure of endoplasmic reticulum. As far as origin of endoplasmic reticulum is concerned, the most accepted view is origin of endoplasmic reticulum that RER. Students, there are two type of endoplasmic reticulum. One is known as rough endoplasmic reticulum, that is RER, and second is known as smooth endoplasmic reticulum, that is SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम रफ इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. सो RER इज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन कैसे हुआ इसके बारे में मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू ये है कि जो ER है that is RER, it arises as an invagination of the outer nuclear membrane. इसका मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर जो इन्वेजिनेशन जो है उससे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका ओरिजिन हुआ है. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ से बना है बाय द लॉस ऑफ द राइबोसोम्स. देन इंटरसिस्टर्नल स्पेस, सिस्टर्नीज क्या होते हैं, अभी हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ER जो है बच्चे वो सिस्टर्नी से मिलके बनता है, उसका एक एलिमेंट है सिस्टर्नी. सो जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है ER का वो कॉन्टिन्यूस होता है विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस. फ्लूइड प्रेजेंट इन द ER, जो ER के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट है वो सिमिलर नेचर का होता है. ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. अभी मैंने आपको बताया कि जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है कि देर आर मेनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, उसका एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 50 to 60 ऑंगस्ट्रॉम थिक होता है. एंड इफ वी लुक एट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. इसके पास स्टूडेंट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इट इज़ एब्सेंट इन द प्रोक्रियोइड्स बट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द यूक्रियोइड्स एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स और जो मेच्योर RBCs होते हैं उसमें ये एब्सेंट होता है. अदरवाइज सारे यूक्रियोटिक सेल्स जो हैं उसमें ER जो है वो प्रेजेंट होता है. सो अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ER जो है उसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज़ नोन एज सिस्टर्नी, नंबर 2 इज़ नोन एज टिब्यूल्स एंड नंबर 3 इज़ नोन एज वेसिकल्स. सो सिस्टर्नीज क्या चीज़ है? नैरो फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. सो ये क्या है? नैरो हैं, फ्लैटेंड हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं विच लाई पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं, मे बी इंटरकनेक्टेड एंड दे अकर इन द सेल हैविंग एक्टिव सिंथेटिक रोल. तो अगर हम सिस्टर्न्स को देखते हैं स्टूडेंट्स तो इस तरह से ये एक नैरो और फ्लैटेंड इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं सिस्टर्नीज, और इनके ऊपर इस तरह से हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. दे आर नोन एज राइबोसोम्स. ठीक है. सो सिस्टर्नीज जो होते हैं दे आर स्टडीड विद राइबोसोम्स. सो दीज आर राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द सिस्टर्नी. सो सिस्टर्नी क्या है? नैरो हैं, फ्लैटेंड हैं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और ये जो सिस्टर्नी होते हैं दे आर स्टडीड विद राइबोसोम्स. सो दे आर मोर इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स. सेकेंड जो होते हैं दे आर टिब्यूल्स. टिब्यूल्स जो होते हैं वो भी वाइडर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, बट वो ब्रांच्ड होते हैं. ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? वो स्टूडेंट्स वो जो हैं इस तरह से ब्रांचिंग शो करते हैं लाइक दिस. दे आर टिब्यूल्स. और टिब्यूल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन. जबकि सिस्टर्नी कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, बट टिब्यूल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर विदाउट राइबोसोम्स. यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं, जो टिब्यूल्स हैं इनके अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर नॉट स्टडीड विद राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर एब्सेंट्स. ठीक है. एंड देन थर्ड है वेसिकल्स. वेसिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेसिकल्स जो होते हैं इस तरह से राउंड हैं या ओवल बॉडीज़ हैं. दे आर वेसिकल्स एंड दे आर स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर एंड देयर डायमीटर रेंजेस फ्रॉम 25 to 500 म्यूमीटर एंड दे आर ऑल्सो स्टडीड विद राइबोसोम. अगर हम वेसिकल्स के बाहर देखते हैं तो वेसिकल्स के बाहर जो है हमें इस तरह से ये जो मैं डॉट स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ दे आर नथिंग बट दे आर राइबोसोम्स. ठीक है. सो वेसिकल्स और सिस्टर्नीज जो होते हैं दे बोथ आर स्टडीड विद राइबोसोम्स, बट टिब्यूल्स के साथ जो है राइबोसोम्स अटैच नहीं होते. सो टिब्यूल्स जो होते हैं दे आर मोर इन द लिपिड फॉर्मिंग सेल्स, बट सिस्टर्नीज जो होते हैं दे आर मोर इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स. सिमिलरली वेसिकल्स जो होते हैं दे आर मोर इन द प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स बिकॉज राइबोसोम्स क्या हैं? वो हमारे प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं. नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ER जो होता है वो 2 टाइप का होता है. SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये हमने देखा कि ER जो है वो एक तरह का सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि सेल के अंदर मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उनको हेल्प कर रहा है. सो इसको हम एक सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल. सो स्टूडेंट्स जो SER है लेट अस स्टडी सेपरेटली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SER, व्हाट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ RER एंड स्पेशल फंक्शन ऑफ SER. सबसे पहले जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू दैट इट डज नॉट बियर एनी राइबोसोम्स, वेयर एज रफ के पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं. स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं है. सो इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक is mainly involved in the lipid synthesis, whereas rough जो है इसका main function क्या है? synthesis of protein. It is a very important point. वो lipids के synthesis में help कर रहा है और ये proteins के synthesis में help करता है. जो smooth होता है उसमें vesicles और tubules होते हैं और जो rough होता है उसमें cisternae and tubules होते हैं. It is found in the peripheral region होता है. It is found deep inside the cytoplasm. It may develop from RER. अभी मैंने आपको उसका origin बताया था कि जो smooth endoplasmic reticulum है
है वो कहाँ से डेवलप हुआ, रफ से डेवलप हुआ बाय द लॉस ऑफ द एंड राइबोसोम। वेरएज RER कहाँ से हुआ, वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसकी एक इन्वेजिनेशन है, उससे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हुआ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल था जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है और जो कि मेन ER जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल जो है उसमें हेल्प करता है इन द डायरेक्शनल फ्लो। एंड इट ऑल्सो लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि जो ER जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। फिर हमने स्पेशल फंक्शन देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल आ गया, दैट इज गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस जो है स्टूडेंट्स, इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। सो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी जो गोल्जी स्ट्रक्चर है ये भी एक नेटवर्क बना रहा है। सो एक रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है एंड इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। सो जो सेल सिक्रीट कर रहे हैं, किसी तरह की सिक्रीशन बनाते हैं, उसमें ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जो भी सिक्रीशन होती है उसको कंसंट्रेट करता है, उसको पैक करता है, और उसकी जो ट्रांसपोर्ट है आउटसाइड सेल उसमें भी ये हेल्प करता है। सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी 1898। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक, जैसे हमने ER में सिस्टर्न्स देखे तो इसमें भी सिस्टर्नीज हैं, 0.5 to 1 मिलीमीटर डायमीटर है एंड दे आर ऑल्सो स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नीज जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड हैं, एक उनका कॉन्वेक्स साइड है जो कि ऊपर वाला साइड जो है उनका एक सिस साइड होता है, उसकी कॉन्वेक्स वाली साइड जो है वो सिस साइड होती है, और एक उसका कॉन्केव साइड होता है जिसे हम उसका मैच्योरिंग फेज कहते हैं या उसका ट्रांस फेज कहते हैं। सो आप इस डायग्राम में स्टूडेंट देख सकते हो, ये जो है उसका ट्रांस फेज है, सो दिस इज द ट्रांस फेज, एंड ऊपर वाला जो है दैट इज द सिस फेज। ठीक है, सो सिस्टर्न्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं कि उनका ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं वो सिस फेज है जो कि कन्वेक्स फेज है, और नीचे वाला जो है वो कनकेव है, उसको हम ट्रांस या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। सिस और ट्रांस फेज जो हैं दे आर टोटली डिफरेंट होते हैं, बट ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सो गोल्जी बॉडीज जो हैं स्टूडेंट ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैमेलियन RBCs, राइट। और इसी तरह से जो सीव ट्यूब्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, उसमें ये नहीं होते। मोस्टली ये सारे यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स के RBCs में गोल्जीज नहीं होते, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट नोट इट डाउन। ओके, देन गोल्जी बॉडीज़ जो हैं स्टूडेंट्स, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ER की तरह गोल्जीज जो हैं इसमें भी क्या है, ये सारे क्या हैं, सिस्टर्नीज हैं। सिस्टर्नीज क्या हैं, ये भी फ्लैटेंड सैक्स हैं और 4 to 8 इलोंगेटेड डबल लेयर्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं सिस्टर्नीज। बट एक चीज़ आप इसमें ER से डिफरेंट है, अगर आप सिस्टर्न्स के ये एंड देख रहे हैं तो ये थोड़े से क्या होते हैं, स्वोलन एंड्स होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट वन अपॉन द अनदर। इस तरह से इनके एंड जो हैं ये थोड़े स्वोलन एंड्स हैं इनसाइड इन द गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, सो उसके बाद इसमें जो है वैक्यूल्स भी होते हैं, वही स्फेरिकल, आपको ये वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, वे भी स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं, और दे लाई टुवर्ड्स द कनकेव साइड ऑफ द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का जो कॉन्केव साइड होता है उसकी तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको वैक्यूल्स दिख रहे हैं। इसी तरह से वेसिकल्स होते हैं इनके पास, वो भी स्मॉल साइज कॉम्पोनेंट होते हैं जो कि कन्वेक्स साइड के ऊपर जो कन्वेक्स साइड आपको दिख रही है तो वहाँ पे ये छोटे छोटे आपको वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, और नीचे जो कॉन्केव साइड आपको दिख रही है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो एक्चुअली स्टूडेंट्स जो कॉन्केव साइड में आपको बात कर रही हूँ, कॉन्केव साइड जो है वो ट्रांस या मैच्योरिंग फेज जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स साइड जो है वो किसकी तरफ होती है, वो न्यूक्लियस की तरफ होती है, उसको हम सिस फेज कहते हैं, और जो मैच्योर वाला है उसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं। ओके, सो ये हमें साइटोप्लाज्म के बहुत प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है। स्टैक्स मैंने आपको बताया, सिंगुलर को हम सिस्टर्ना कहते हैं। सो फ्लैट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हैं, इट इंक्लूड स्पेशल इंजाइम्स हैं विच मॉडिफाई और हेल्प टू मॉडिफाई द कार्गो प्रोटीन्स दैट ट्रैवल थ्रू इट, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। अभी मैंने बताया कि गोल्जीज का मेन जो फंक्शन है दैट इज़ दे आर इन्वॉल्व इन द सेल सिक्रीशंस। ओके, सो ये अभी मैंने आपको इसके फेजेस बताए।
तो इसमें डिस्टिंक्ट फेज़ हैं। अभी मैंने बताया कि इसका सिस फेज़ है और इसका ट्रांस फेज़ है, ठीक है। जो इसका कॉन्केव साइड होती है उसकी हमेशा कॉन्केव साइड हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और उसका जो उसको मेच्योर फेज़ है दैट इज़ नोन एज ट्रांस फेज़, और जो कन्वेक्स सरफेस से होती है वो हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होती है, उसका हम बोलते हैं सिस फेज़। तो ईच रीजन जो है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं विच सिलेक्टिवली मॉडिफाई द कंटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे रिजाइड। ओके, गोल्जी apparatus इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 सिस्टर्नीज हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की पोलैरिटी मैंने आपको इसका बता दिया कि उसकी डिस्टिंक्ट पोलैरिटी है, उसके 2 पोल्स हैं, सिस हैं और ट्रांसफेज हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स। रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है कि ये जो गोल्जीज हैं ये तकरीबन मैंने अभी आपको समझाया कि गोल्जीज क्या करते हैं कि जो सेल सिक्रीशन कर रहे हैं उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, तो ये सिक्रीशन जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको पैक करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, फॉर शिपिंग डिपार्टमेंट हमने इनको बोला, राइट। सो सिक्रीटरी मटीरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वो कहाँ जाता है, रीचेज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। So let us study once again the functions of the Golgi apparatus. Golgi apparatus के main function क्या है? It is secretes the materials to the intracellular targets or outside the cell. Materials to be packed as vesicle from ER fuse with the cis phase. So जो ER से आपके material आ रहे हैं from the ER, so वो packed होते हैं in the form of the vesicles और वो fuse हो जाते हैं with the cis phase and then they move towards the trans phase, ठीक है। क्योंकि इसकी एक पोलैरिटी है, गोल्जी बॉडीज़ का एक डेफिनेट जो होती है वो पोलैरिटी होती है इसकी। एंड देन ये दे ऑल्सो एक्ट एज ए पैकेजिंग मेम्ब्रेन एंड दे कंडेंसेस द मटीरियल इन द सिक्रीटरी वेसिकल्स। वो क्या करते हैं, जो सिक्रीटरी मटीरियल है उसको कंडेंस कर देते हैं इन द सिक्रीटरी वेसिकल्स। देन दे ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द ER आर ऑल्सो मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नीज ऑफ गोल्जी apparatus। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ आपके राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, सो वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन्स भी मॉडिफाई होते हैं इन द सिस्टर्न ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस phase, and they also helps in the formation of glycoproteins and glycolipids. So इनका main function है कि वो cell secretion में involved है और they are acting as a packaging membrane also and condenses the material in the secretory vesicles, and they also helps in the formation of glycoproteins and glycolipids. Okay, so it is the component of intracellular transport system ऑफ। तो इसको हम एक तरह से सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके ये मेन कंपोनेंट है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड सेल ऑर्गेनेल आ गया, दैट इज़ नोन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो हैं दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं। दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। तो ये गोल्जी ये कहाँ से बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय, मैंने अभी आपको बताया कि जो गोल्जी apparatus हैं दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। सो लाइसोसोम्स जो हैं दे आर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। लाइसोसोम्स जो वेसिकल्स हैं उसमें बहुत तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज हैं, लाइपेज हैं, प्रोटीएजेज हैं। सो ये बहुत सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम्स में होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में, और दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। तो सेल के अंदर जो डिफरेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें लाइसोसोम जो हैं दे आर इन्वॉल्व एंड दे आर एक्टिव एट एसिडिक pH पे। दे डाइजेस्ट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं बिकॉज उनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएजेज हैं, न्यूक्लिएजेज हैं, राइट। सो इस तरह से ये जो लाइसोसोम्स जो हैं दे आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं विच आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। ओके, सो टर्म लाइसोसोम जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। लाइन इसका मतलब होता है डिज़ोल्व करना और टू रिलीज़ करना, एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं, इनको सुसाइड बैग भी कहते हैं। अभी मैं आपको इनका ऑटोलाइसिस, इनका फंक्शन एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको पता चलेगा कि जो लाइसोसोम है उनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स एंड इन द यीस्ट। इनकी अक्रेंस है बच्चे, सेम पॉइंट में फिर से बोल रही हूँ, दे आर एब्सेंट इन द प्रोक्रियोट्स बट दे आर प्रेजेंट in all the eukaryotic animals except mammalian RBCs।
तो बार बार मैंने आपको मेमेलियन आरबीसीज के बारे में बताया, इसमें ईआर नहीं है, गोल्जी नहीं है, इसमें लाइसोसोम्स भी नहीं होते। एंड कुछ फंजाइज हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको बताया वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उनका जो शेप एंड साइज जो है वो वेरी करता है। सो ये आप स्टूडेंट्स लाइसोसोम देख सकते हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सो ये आपकी जो है ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इंजाइम फील्ड सैक्स हैं एंड दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसमें हाइड्रोस्फेरिकल हैं एंड दे कैन वेरी इन शेप एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द मटेरियल that has been taken up for the digestion and surrounded by single membrane and hydrolytic enzymes and lysosomal membrane जो है वो कहाँ से बने हैं, RER then transferred होते हैं Golgi apparatus को for the processing. So this is a very important point. Lysosomal membrane जो हैं they are made by rough endoplasmic reticulum. Then वो Golgi apparatus को transfer हो जाते हैं, उसकी processing होती है और Golgis जो हैं they help in the formation of primary lysosome. So these are different lysosome enzyme. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 50 के अराउंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, जैसे प्रोटीएजेस हैं, न्यूक्लिएजेस हैं, फॉस्फेटेजेस हैं, देन फॉस्फोलाइपेजेस हैं। और ये सारे जो एंजाइम हैं वो एसिड हाइड्रोलेजेस हैं क्योंकि उनको जो है एसिडिक पीएच चाहिए अपने फंक्शन के लिए। Then let us study the important functions of lysosomes. First of all, lysosome जो हैं मैंने अभी बताया उनका प्राइमरी फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हमने हेट्रोफेगी लिखा। हेट्रोफेगिस होता है मीन्स डाइजेशन ऑफ एक्सोजिनस मटीरियल। कुछ भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल अगर सेल के अंदर आ गया ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट तो वो जो है लाइसोसोम जो होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये डिफेंस मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कई बार कुछ माइक्रोब्स हो जाएंगे। ठीक है, सो हेट्रोफेगी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो फेगोसाइटोसिस होता है, एक पिनोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस होती है एक सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ कर देता है सब्सटेंसेस को और इसको पिंच ऑफ करता है एंड इट फॉर्म्स पार्टिकल कंटेनिंग वैक्यूल। सो पिंच ऑफ करके उस सब्सटेंस जो है उसको वो बाहर निकाल देता है। देन पिनोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो आया उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Then second is known as autolysis. Autolysis involves the digestion of own cells by the lysosome. अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सो लाइसोसोम में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द सेल्फ डाइजेशन ऑफ द सेल बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। सो आफ्टर द सेल डेथ लाइसोसोम एंजाइम्स रिलीज होते हैं और सेल्फ डाइजेशन हो जाती है सेल की। सो इसीलिए जो लाइसोसोम्स हैं उनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉग के अंदर हम देखते हैं कि जो टैडपोल है उसका जो टेल का डिसोल्यूशन होती है, टैडपोल टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सो दैट अकर्स, ऑटोलाइसिस अकर्स ड्यूरिंग द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। सो इसको हमने सुसाइड बैग क्यों बोला, ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि जो लाइसोसोम है वो सेल्फ डाइजेशन कर देते हैं सेल का बाय इट्स एंजाइम्स एंड व्हेन आफ्टर द सेल डेथ लाइसोसोम एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। सो लाइसोसोम्स जो है उनको हम सुसाइड बैग बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेल आ गया, दैट इज़ नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं बच्चे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सो टर्म जो राइबोसोम्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स जो थे दे वर ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पेलेट in 1953. So first of all एक्चुअली इनको आइसोलेट किया था साइटोप्लाज्म से क्लॉड ने 1943। ठीक है, बट दे वर कॉल्ड राइबोसोम्स बाय जी पेलेट इन 1953। ओके, सो राइबोसोम्स जो हैं अगर हम बच्चे सेम मैं ये बोलूँगी कि स्मॉलेस्ट हैं, एक तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जो कि आपका प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बनते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम्स जो हैं दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज दे आर फाउंड इन द यूकैरियोट्स। सो इनका जो मोस्टली इनका जो नंबर है राइबोसोम्स का वो डिपेंड करता है आरएनए कंटेंट पे। सो दे आर मोर इन प्लाज्मा सेल्स और लिवर सेल्स जो हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उसमें होते हैं। सो राइबोसोम
राइबोसोम्स जो होते हैं उनके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट दैट इज 60S लार्ज सब यूनिट है, एंड 40S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। दोनों मिलके जो है वो 80S यूनिट जो है वो बनाते हैं। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। सो राइबोसोम्स जो है लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, दे आर लिविंग सेल हैं, प्रोक्रियोट फाउंड इन लिविंग सेल्स, प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स दोनों में मिलते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो हैं उनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। सो इनका जो मेन फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द cells because they are the site of the protein synthesis, and proteins control either the cellular structure or proteins are acting as an enzyme or they are controlling the cellular function. So and ribosomes are known as the protein factories. So they are first observed in 1953 by Romanian cell biologist, that is Emil Pellet, using electron microscope. अभी मैंने आपको बताया था G. Pellet. So this is George Emil Pellet 1953. तो ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट्स। प्रोक्रियोइड्स में फ्री फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में, और यूक्रियोट्स में फ्री भी होते हैं एंड दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू रिमेंबर RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके साथ राइबोसोम्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स जो हैं जॉइन टुगेदर when the ribosome attached to the messenger RNA. Students, what is messenger RNA? जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि राइबोसोम के जो स्मॉलर और लार्जर 2 सब यूनिट हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स अलॉन्ग विद द ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल हेल्प्स टू ट्रांसलेट द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। इसका ये जो है स्टूडेंट, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं और इसके सब यूनिट जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है उस समय राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके साथ मैसेंजर RNA जो है वो बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। ओके, so that's all about ribosome, students. Next cell organelle is vacuoles. Vacuoles are membrane bound space found in the cytoplasm. So vacuoles क्या है students? Vacuoles को भी हमने cell organelles के अंदर रखा है। Vacuoles are also present in the cytoplasm और vacuoles के अंदर क्या होता है? They have water है, sap है, excretory products हैं, कुछ cell का waste है and other materials not useful for the cell. तो जैसे आप ये large सेंट्रल वैक्यूल देख रहे हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। सो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को सराउंड कर दिया, सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम स्टूडेंट्स। So this is the membrane surrounding the vacuole. So vacuole is bound by a single membrane and that is known as tonoplast. In plant cell, vacuole can occupy 90% of the cell volume. तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेंट्रल जो पोजीशन है, कितना बड़ा स्पेस जो है सेल के अंदर, वो सेल के वैक्यूल जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। सो वैक्यूल्स जो हैं दे आर फाउंड इन ऑल द यूक्रियोटिक सेल टाइप्स में होते हैं। एनिमल सेल में थोड़ा छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं और इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं, जबकि प्लांट सेल में आप देख रहे हो कि एक सिंगल एक लार्ज वैक्यूल है और इट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सो सेकेंड मैंने आपको टोनोप्लास्ट बताया, आउटर सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल है, जो ट्रांसपोर्ट करती है आयंस एंड अदर मटेरियल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू स्टोर देम इन द सैप। सैप क्या होते हैं? सैप वर्ड अभी मैंने बताया कि जो वैक्यूल्स जो हैं उनके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है और उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, शुगर हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। सो वो क्या फॉर्म करते हैं? सेल सैप फॉर्म करते हैं। सो ये आप मैंने टोनोप्लास्ट बताया कि वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। सो ये क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है आयंस का और अदर मटेरियल्स का। देन अमीबा के अंदर स्टूडेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसी तरह से फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपके जैसे प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, वो एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपके पास आ गया, ओके just wait. Okay, so this is a diagram showing you two different type of vacuoles, vacuole in a plant cell and vacuole in the animal cell. अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं, स्मॉल साइज़ के आपको वैक्यूल्स जो हैं वो दिख रहे हैं और वो स्कैटर्ड हैं।
ठीक है. बट इन केस ऑफ एनिमल सी यू कैन सी सच अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और ए सैप वैक्यूल है विच इज़ फिल्ड विद द सेल सैप एंड इट ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. सो दीज आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं. वैक्यूल्स जो हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म्स, और वैक्यूल्स जो हैं दे आर फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल टाइप्स. प्लांट सेल में जस्ट वन है, बिग है, सैप फिल्ड है, और एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल साइज एंड दे आर irregularly scattered in the cytoplasm. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टूडेज़ लेक्चर. स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्कस किए. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम है. देन गोल्जी अपरेटस किस तरह से गोल्जीज जो हैं वो सेल सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं. देन वी discussed about the lysosomes, and then after lysosome we discussed the ribosomes which are the protein factories, and finally we discussed about the non-living components of the cytoplasm. They are the vacuoles, and most important thing I told you that there is a vacuoles are also the membrane bound structure. They are surrounded by a single membrane and the name of the membrane is the tonoplast, and this tonoplast help in the active transport of the material against the concentration gradient. And in the animal cell we have many vacuoles, small size vacuoles, and which are scattered, whereas in the plant cell we have a single large central sap filled vacuoles. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. Have a nice day.